दोस्तों आजकल उत्तर कोलकाता सुर्खियों में बना है क्योंकि पॉलिटिक्स के 3 दिग्गज महारथी अब मैदान में आमने सामने होने जा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्री सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि पिछले 25 सालों से उत्तर कोलकाता से सांसद रह चुके हैं, अब वो भी इस मैदान के सबसे बड़े चेहरे बनकर बेखौफ खड़े हुए हैं। और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के पूरे उत्तर कोलकाता के सारे काउंसिलर को भी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जिसका एक जिंदा मिसाल वार्ड नंबर 39 है। जी हां दोस्तों, वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर और ब्लॉक के प्रेसिडेंट मोहम्मद जैसुमुद्दीन के नेतृत्व में एक मेगा रैली किया गया, जहां मौजूद थे जोड़ा साको के एमएलए विवेक गुप्ता, उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय और वार्ड के पार्षद एमडी जैसुमुद्दीन और उनके वार्ड के हजारों की तादाद में आए हुए लोग, जो कि सुदीप बंदोपाध्याय के हर घरों से फूल से स्वागत किए। तो आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। भारतेर कन्स्टिट्यूशने कोनो धर्मके आघात देওয়া যাবে না, কোনো ধর্মকে অপমান করা যাবে না, কোনো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না, ধর্মের নামে ভোট পাওয়া যাবে না। আজকে প্রধানমন্ত্রী ধর্মের নামে ভোট চাইছেন, ধর্মের নামে বিভাজন করছেন, ধর্মের নামে মুসলমানদের গালি দিচ্ছেন, বলছেন এরা বেশি বাচ্চা পয়দা করে। এই মুসলমান এই ঘৃণাটা প্রধানমন্ত্রী যে প্রকাশ করছেন, আমি আপনাকে বলছি এই ঘৃণার জবাব 1 তারিখের মানুষ উত্তর কলকাতায় দেবে, বাংলাতেও দেবে, ভারতবর্ষেও দেবে। যে মুসলমান আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী, যাকে আমরা মনে করতাম আমার মাথা हमारा सरप्रस्त है, इन्हीं बोलছেন बच्चा ज़्यादा पैदा करता है। ये लोग क्या है, घुसपैठिया है। आज के प्रधानमंत्री যদি বলেন আমরা गद्दार, हम लोग घुसपैठिया है, আমরা পাকিস্তানি, একজন প্রধানমন্ত্রী বলবে তার নামে মামলা হবে না? ভারতের আইনে রাষ্ট্রপতি ছাড়া, গভর্নর ছাড়া যে কোনো মানুষের এফআইআর হতে পারে। কেন প্রধানমন্ত্রীর নামে এফআইআর হবে না? কেন কনস্টিটিউশনাল কে ব্রেক করছেন প্রধানমন্ত্রী? কেন ইলেকশন কমিশন অ্যাকশন নেবে না? কেন নেবেন না? আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আওয়াজ তুলুন। কি হচ্ছে আমাদের দেশে? মন্দিরের নামে ভোট হবে, ধর্মের নামে ভোট হবে, হিন্দু মুসলমান করে ভোট হবে। এটা আমাদের দেশের আইন। আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। এই তো বলছি, আজকে যে এইখানে রোড শো হয়েছে বা পদযাত্রা হয়েছে, দেখেছেন? আমরা হিন্দু মুসলমান, শিখ, ইসাই, বুদ্ধ, জৈন, পার্সি, আমরা সবাই একসঙ্গে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন শুরু করেছেন, মাক্কি জালালউদ্দিন শাহ ওখানে দরগাতে গেছেন, চাদর খুশি করেছেন। তার পাশে যখন ঠানঠানিয়া দিয়ে বেরিয়েছেন, পা দিকে যখন ঘুরেছেন, সেখানে বিখ্যাত কালী মন্দির, you know, the Thandaniya Kali Mandir is the second largest in Calcutta. Kolkata's second largest, সবচেয়ে পুরানো, তাই তো? কালীঘাটের পরে এই ঠান্ডানিয়া সেকেন্ড লার্জেস্ট কালী মন্দির। সেখানে গিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করেছেন, পুজো দিয়েছেন, তারপরে ফুল চড়িয়েছেন এবং প্রহিতকে বলেছেন এই সবার ভিড়ের মধ্যে না, আমি শীঘ্রই আপনাদের কাছে আসবো এখানে পুজো দিতে বলেছেন। গেছেন তো, দেখেছেন তো? রাজেন্দ্র দেব রোড দিয়ে ঘুরে যাচ্ছেন, তখন গন্ধেশ্বরী মন্দির। আপনারা ইউনো, কলকাতার সবচেয়ে বড় গন্ধেশ্বরী মন্দির হচ্ছে রাজেন্দ্র দেব রোডে যে মন্দির, গন্ধেশ্বর বণি সমাজের সবচেয়ে বড় মন্দির, জানেন তো আপনারা? যেমন ওইখানে পুজো হয়, সারা কলকাতা থেকে কমসে কম 30-40 হাজার লোক ওখানে আসে। কলকাতার সবচেয়ে বড় গন্ধেশ্বরী মন্দির ওটা। সেখানে যেমন সুদীপদা গেছেন, ওখানকার সব মানুষরা ছিলেন। সুদীপদা ওখানে দিয়েছেন যে আমার ফুল দিয়েছেন, যে আমার ফুলটা চড়িয়ে দেবেন, পুজো দেবেন। তারপরে আপনারা কি দেখলেন, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে যখন গেছেন, একদিকে যেমন 18 কালী কালী মন্দির, 18 হাত কালী মন্দিরে পুরোহিত এসে টিকা লাগিয়েছে, সুদীপদা ওখানে পুজো দিয়েছে। তারপরে ঘুরতে মিত্র লাইনে যখন আমরা গেলাম, ওখানে 3টে মন্দির সুদীপদা পুজো দিয়েছে, সুদীপদা ফুল পাঠিয়েছেন, তাই তো? তারপরে ঘুরিয়ে আমরা দেখলাম সাই বাবা 2 নম্বর মিত্র লাইনে, ওখানে মন্দির আছে সাই বাবার মন্দির। সাই বাবার মন্দিরও সুদীপদা দাঁড়িয়েছেন, নমস্কার করেছেন, পুজো দিয়েছেন। রাস্তায় চলতে যদি কোনো চার্চ আসতো, আমি কি করবো? আমার ওয়ার্ডে কোনো চার্চ নেই, আমি কি করবো? আমার ওয়ার্ডে কোনো গুরুদ্বারা নেই। আপনার বিশ্বাস রাখুন, আজকে রাস্তায় পথে চলতে যদি গুরুদ্বারা হতো, আমরা সব গুরুদ্বারায় দাঁড়িয়ে প্রণাম করতাম। যদি চার্চ হতো, সেখানেও সুদীপদা যেত, আমরা সবাই যেতাম। এটাই আমাদের ভারতবর্ষ। আর আজকে এই ভারতবর্ষ এর ঐতিহ্যকে সর্বনাশ করছে। আজকে আমি এখানে প্রেস কনফারেন্স করছি কেন?
মানুষের সামনে প্রেস কনফাरेंस করছি। क्या आप लोग बोलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये क्या अच्छी बात है? ये क्या मन की बात है? ये क्या अच्छे दिन है? आप तो प्रधानमंत्री जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे। अगर आपका ये अच्छा दिन है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करो और वोट, ये क्या अच्छा दिन है? अगर ये अच्छा दिन है तो हमको ऐसा दिन भी नहीं चाहिए और ना मोदी जी चाहिए। इसलिए हम लोग ये नारा देना चाहते हैं इस चुनाव में, मोदी हटाओ देश बचाओ। सिर्फ मोदी हटाओ देश बचाओ नहीं, बल्कि मोदी हटाओ हिंदू मुसलमान का एकता बचाओ। गंगा जमुना जो तहजीब है उसको बचाओ, मंदिर को भी बचाओ, मस्जिद को भी बचाओ, गिरजा को भी बचाओ, गुरुद्वारा को भी बचाओ। मोदी को हटाओ देश बचाओ, मोदी को हटाओ इत्तेहाद बचाओ, मोदी को हटाओ आपस का मोहब्बत बचाओ, मोदी को हटाओ इखलाक प्यार मोहब्बत, मोदी को हटाओ दुर्गा पूजा बचाओ, मोदी को हटाओ ईद बचाओ, मोदी को हटाओ क्रिसमस बचाओ। क्योंकि मोदी सिर्फ देश के लिए खतरा नहीं है। मोदी जो बातें कर रहे हैं सिर्फ राज सिंहासन में बैठने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठने के लिए, कोई ऐसा कह सकता है कि मुसलमान जितना बच्चा पैदा करता है? ये लोग घुसपैठिया है। प्रधानमंत्री पहले कब्रिस्तान और शमशान करते थे, अब तो इतना गिर चुके हैं, इतना आज दुनिया में बदनामी हो रहा है। আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষের একজন প্রধানমন্ত্রী, আপনি বলেন বিশ্বগুরু, আপনি বিশ্বাস করবেন? আজকে এই বিশ্বগুরু, ভারতবর্ষের বিশ্বগুরু যাকে বলেন, সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের মধ্যে বীজ ঢেলে দিয়েছে, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে বীজ ঢেলে দিয়েছে। আজকে পৃথিবী বলছে नरेंद्र मोदी के जरा सम्मान करते, जरा इज्जत दीते, तारा बच्चे ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है, सब संपत्ति मुसलमान का कब्जा में चले जाएगा, ये सब प्रधानमंत्री जी। असल में आपने যেটা কোশ্চেন করেছিলাম আমি একটু डिटेल बोललाम, এই जनता जनार्दन सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करছি, बंद कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं किया। आज हम ठीक किया था, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज जनता के सामने आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो जहर फैला भी रहे हैं और जहर पिला भी रहे हैं। हम ये शपथ करते हैं कि हजारों साल से हमें कोई जुदा नहीं कर सका, मोदी जी भी हमको जुदा नहीं कर सकेंगे। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। আপনি বলেছেন না আমাদের কঠিন পরিস্থিতি, এবার मोदी जी का कठिन परिस्थिति है। আমরা একটা কবিতা শিখেছি ছোটবেলাতে, जब इंसान का सवाल आता है तो उसके दिमाग, उसका होश उड़ जाता है। आज देखिएगा मोदी जी जैसा बोल रहे हैं, 10 साल तक अडानी अंबानी बोलेंगे, এখন আদানিও বলছেন আম্বানিও বলছেন, আবার কি বলছেন? আদানিকে চোর বলছেন, আম্বানিকে চোর বলছেন। এতদিন আমরা যখন বলতাম চোর, মোদিজি কিছু বলতেন না, এখন নিজেই বলছেন আদানি চোর। चोरी का माल आया है क्या? टेम्पू में भर के आया है क्या? काला धन भेजा है क्या? আমি এই তিনটে প্রশ্ন আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি। আপনি জানেন টেম্পুতে মাল গেছে, তাহলে সিবিআই, ইডি, আইটি, ইনকাম टैक्स এখন পর্যন্ত मुकेश अंबानी और अडानी घरे जाएगी। केजरीवाल का घर में जा रहा है, अभिषेक बनर्जी को बुला रहा है, हम लोग को चमका रहा है सीबीआई, ईडी से। हेमंत सोरेन जेल में है, स्टालिन का लड़की को जेल में कर दिया है, उद्धव ठाकरे को भी बोल रहा जेल में भेजेंगे, तेजस्वी यादव को भी जेल में भेज रहा है। सबके घर में ईडी, सबके घर में सीबीआई। जब प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं देशवासियों के सामने कि टेम्पो में माल गया, काला धन गया, चोरी का माल गया, তাই তো পুরো বক্তব্যটা আমি লাইনটা ধরে বলছি। বলেছেন তো চोरी का माल, বলেছেন তো ব্ল্যাক মানি, বলেছেন তো টেম্পু में माल गया। তাহলে মোদি জি যখন জানেন যে টেম্পুতে মাল গেছে, তাহলে ইডি, সিবিআই মুকেশ আম্বানি আদানির ঘরের পাঠাচ্ছেন না কেন? কেন এফআইআর হচ্ছে না আদানির বিরুদ্ধে? কেন এফআইআর হচ্ছে না মুকেশ আম্বানির বিরুদ্ধে? কেন ইডি যে দিয়ে তদন্ত শুরু হচ্ছে না? কেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়া হচ্ছে না? কেন ওকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে না? কেন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না? আমাদের দেশে একটা সংবিধানে, একটা আইনে
সবার জন্য যা, মুকেশ আম্বানি আডানির জন্য তাই। একটা লাইন বলে দিচ্ছি আরো, আর কার কি বলেছেন, ব্ল্যাক মানি। তার মানে मोदी जी জানেন যে ब्लैक मनी गया है। आपने बोलेছেন ब्लैक मनी विदेश से लाएंगे, वो तो 10 साल में ब्लैक मनी नहीं आया। 14 तो बोलेছিলেন हम आएंगे तो ब्लैक मनी को लाएंगे, तो वो तो ब्लैक मनी मोदी जी आया नहीं। अच्छा, विदेश से तो ब्लैक मनी नहीं आया, लेकिन देश में ब्लैक मनी किसके पास है मोदी जी जानते हैं, तो वो ब्लैक मनी कहाँ गया, वो ब्लैक मनी लाना होगा। তাই আমরা জনগণের প্রেস কনফারেন্স, আমরা যারা বসে আছি আজকে জনগণের প্রেস কনফারেন্স, আমরা আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকে নিয়ে রোড শো করে এই মানুষের জনসমর্থন নিয়ে বলতে চাই, এত মানুষের রিপ্রেজেंटेटिव হিসাবে বলতে চাই, যখন मोदी जी জানেন যে काला धन राहुल गांधी के पास गया है, काला धन कांग्रेस के पास गया है, और काला धन भेजने वाला मुकेश अंबानी है, काला धन भेजने वाला अडानी है, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি তো বিদেশ থেকে কালা ধন আনলেন না, কিন্তু এই দেশে যখন কালা ধন আছেন আপনি কালা ধন জব্দ করছেন না কেন, আপনি রেড করছেন না কেন? मुकेश अंबानी का काला धन धरना पड़ेगा, अडानी काला धन आनते হবে। 15 लाख रुपया करते तो नहीं दिए, बोले थे विदेश से काला धन लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया सबका बैंक में अकाउंट में देंगे। अगर मुकेश अंबानी और अडानी का काला धन लिया है तो 15 क्या, हमको लगता है 30-30 लाख रुपया घर में चले जाएगा। चलो, बांग्ला उर्दू में बोलता है सुबह का लौटा शाम को घर लौटा है, तो उसको भूला नहीं कहते। 15-15 लाख रुपया वादा किए थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबका बैंक अकाउंट में आएगा। चलो कोई बात नहीं है, माफ करते हैं मोदी जी को। अब जब आपको मालूम है अडानी के पास ब्लैक मनी है, आपको मालूम है मुकेश अंबानी के पास में ब्लैक मनी है, तो जल्दी से जल्दी दोनों का ब्लैक मनी लाइए। 16 लाख, এটা লিখবেন তো, এটা বলবেন তো, 16 লাখ करोड़ रुपया খালি अडानी को छोड़ा है मोदी ने। एम आई राइट? 16 লক্ষ টাকা ছেড়েছে কিনা সমীরদা বলুন। 16 লক্ষ টাকা ব্যাংক, 16 লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকের ঋণ মুকুব করেছে মোদি। কার? কৃষকের, জসিমউদ্দিনের, 39 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের বা হিন্দুদের, যাদের ভোট চাইছেন। কাকে করেছেন? শিক্ষককে করেছেন, ছাত্রর জন্য করেছেন, মহিলাদের জন্য করেছেন, পুরুষের জন্য করেছেন, বেকারদের জন্য করেছেন? করেননি। 16 লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকে ঋণ মুকুব করেছেন আডানির। আর আজকে আপনি বলছেন আডানির কাছে ব্ল্যাক মানি থাকবেই তো। 16 লাখ কোটি টাকা, 16 লক্ষ কোটি টাকা আপনি ছাড় করেছেন, ওকে দিতে হবে। ওই মালটা তো আছে, আরও মাল আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग हैं, अगर मुकेश अंबानी और अडानी का काला धन अगर जब्त कर दिया जाए तो हर हिंदुस्तानी को 30-30 लाख रुपया मिल जाएगा। इसलिए हम लोग मोदी जी से आवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, मोदी जी आप जल्दी से जल्दी, विदेश से तो काला धन नहीं लाए, 10 साल हो गया काला धन नहीं लाए, लेकिन आपसे अनुरोध है, जब आपको पता है कि मुकेश अंबानी और अडानी के पास काला धन है तो जल्दी से काला धन लाइए और हिंदुस्तान के लोगों को 30-30 लाख रुपया बैंक में डालिए। फिर तो मोदी हम लोग करेंगे, घर घर में मोदी होगा, हर मोदी, घर घर मोदी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से जो गारंटी हुआ है अभी, वारंटी गारंटी, उसमें अभी हम आएंगे नहीं, आपका क्वेश्चन होगा तो आएंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे। और क्वेश्चन है कि निर्वाचन আমাদের জন্য কঠিন না, এবার নির্বাচন কঠিন হচ্ছে বিজেপির জন্য। এবার কঠিন হচ্ছে যারা বিজেপির পতাকা নিয়ে যারা বড় বড় কথা বলছে, 400 পার। 2021 সালে কি বলেছিল? 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় কি বলেছিল? 200 পার। আমরা হলাম 200 পার, ওরা হলো 30 পার। 23টা নির্বাচন হয়েছে আমাদের দেশে, 23। আমি একটু জোকিং করে বলি, লেকিন তত্ত্ব ছাড়া বলি না, আপনাদের সামনে বলছি। আমি জানি আমি যেটা বলছি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, এই জন্য আমার শত্রুও বেশি, কিন্তু আমি ভয় করি না। রাজনীতিতে দুটো জিনিস হতে পারে, এক হয়তো বলতে হবে, আর নয়তো জীবনভর শত্রু বইতে হবে, নাহলে শত্রু বইতে হবে। আমি শত্রু বইতে রাজি আছি, কিন্তু বলা বন্ধ করব না। আমার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, আমি বলছি, আমি বলবো, আমি বলে থাকবো। তাই আমি বলছি, ভারতবর্ষের 23টা রাজ্যের নির্বাচনে
আপনি তামিলনাড়ুর নির্বাচনে, মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে, বিহারের নির্বাচনে সব জায়গায় একটা বলেছে 100 পার, কোথাও বলেছে 150 পার, কোথাও বলেছে 200 পার। বলেছে কিনা? বলেছে। দিদি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, চ্যানেল 10 বলেছে কিনা? 2021 সালে পশ্চিম বাংলায় বলেছিল না 200 পার? হয়েছে? দিল্লিতে বলেছিল 60 পার, দুবার বলেছিল কেজরিওয়ালের সরকার চলে যাচ্ছে, 60 পার বলেছিল তো, হয়েছে? তামিলনাড়ুতে কি বলেছিল? 150 পার, হয়েছে? कर्नाटक की बोले 130 पार, कोई नहीं रोक सकता है, किसी की ताकत नहीं है। 130-35 पार হয়েছে? হয়নি। মোদির গ্যারান্টি ওটা কি ছিল? 15 লাখ টাকা ব্যাংকে যাবে, ওটা তো গ্যারান্টি ছিল। ওই গ্যারান্টিটা পূরণ হয়েছে? কালাধান আনবো, এনেছেন, ওটাও তো গ্যারান্টি ছিল। 1 বছরে 2 কোটি চাকরি হবে, হয়েছে? ওটাও তো গ্যারান্টি। বলেছিলেন बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, বলেছিলেন তো? বলেছিলেন কি না? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। পেট্রোলের দাম কত? 2014-তে পেট্রোলের দাম ছিল ফি লিটার 54 টাকা, এখন তো হয়ে গেছে 109 টাকা, 10 টাকা, 7 টাকা, 8 টাকা, 10 টাকা, হয়েছে? ডিজেল কত ছিল 2014 সালে? বলেছিল 100 দিনের জিনিসপত্রের দাম কম করব, করেছেন? ডিজেল ছিল 32 বা 34 টাকা, এখন ডিজেল হয়ে গেছে 103 টাকা। চালের দাম বেড়েছে, দুধের দাম বেড়েছে, 65 টাকার দুধ হয়ে গেছে। সরষের তেল দাম বেড়েছে, রিফাইন অয়েলের দাম বেড়েছে, ঘি দাম বেড়েছে, নুনের দাম বেড়েছে, চালের দাম বেড়েছে, ডালের দাম বেড়েছে, বেড়েছে কিনা? বেড়েছে। কয়লার দাম বেড়েছে, খাদ্যের দাম বেড়েছে। বলেছিল কিষানों का आई, ম্যানিফেস্টোতে বলেছিল, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিল, ওয়ারেন্টি দিয়ে বলেছিল किसानों का आय दुगना कर देंगे। दुगना হয়েছে? কৃষকদের আয় দুগনা হয়েছে? বলেছিল গরিব মানুষের আয়, ইনকাম, পার ডে যে ইনকাম আছে সেটা দুগুণ করে দেব। দুগুণ হয়েছে? দুগুণ হয়েছে? কত বলবো? अच्छे दिन বলেছিল, अच्छे दिन এসছে? বলুন আপনি। যা বলেছেন মোদি 10 বছরে, যা বলেছেন কিচ্ছু হয়নি। ओटाओ आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि हमने जो वादे किया पूरे किए। हमने 3 तलाक का मुद्दा किया, बोला कंप्लीट किया। हमने 370 बोला, हमने राम मंदिर को बोला, हमारे मैनिफेस्टो में, हमने उस पर काम किया। जो हमने वादे किए सब हमने उसको लेकर आगे। আপনারা জানেন না, বলছেন 370 এখনো উঠিনি। একটা 370 যে আর্টিকেলস, তার একটা ধারা বি হেঁটেছে। বি, আমি একটু পড়াশোনা করি ভাই। বি হেঁটেছে। সুপ্রিম কোর্টের মামলা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, আমি তার মধ্যে টিপ্পনি করব। আমরা বলছি 370 আপনি করেছেন, আচ্ছা মন্দির করে দিয়েছেন আপনি, মন্দির তো मंदिरों করেছেন, শুধু তো मंदिरों করেননি। উনি কি বলছেন? राम जी को हम लेके आए। भारतवर्ष के हिंदुओं को लिए दुख की बात है जब हम लोग सनातन धर्म में 4 वेदों में, कुरान में हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है, समझा है कि हजारों हजार साल से राम थे, राम हैं और हजारों हजार साल तक रहेंगे। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद पता चला राम जी को मोदी जी लेके आए। कल उन्होंने बैरकपुर लोकसभा में भाषण दिया और बड़ा बड़ा टैबलो देखे, मोदी जी का लंबा लंबा तस्वीर है और राम जी छोटे हैं, हाथ पकड़ के राम जी को लेकर के आ रहे हैं। राम जी थे कहाँ? अभी अयोध्या में 22 तारीख को राम जी को मोदी जी लेके आए हैं और राम जी बोल रहे कि जब हम आ गए तो तेरा जरूरत अब क्या है, अब ते जा। कल उन्होंने बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में भाषण देते हुए कहा था कि बंगाल की जो धरती है पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती थी। यहाँ के लोग क्रांतिकारी हुआ करते थे, बैरकपुर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ अलग अलग चीज़ें आविष्कार होती थी। लेकिन जब से तृणमूल सरकार आई है, यहाँ पे दुर्नीति हो रही है, घोटाले हो रहे हैं और बमों की फैक्ट्री है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी ना कहें तो अच्छा है, मोदी जी अगर ना कहें तो अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, ये क्या है?
क्यों डर रहे थे लीज देने के लिए? क्यों डर रहे थे लीज देने के लिए? सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने अगर इनिशिएटिव न ली होती तो देश की जनता ये जानती नहीं कि मोदी जी कितना करोड़ रुपया और कितना करोड़ रुपया किन किन लोगों से लिए। सिंपल एक उदाहरण जो हमारे सामने में आया है, जिस शराब मामला में आप सिसोदिया को 2 बरस से अंदर किए हुए हैं, जो शराब के मामले में आपने संजय सिंह को 6 महीना तक गिरफ्तार करके रखा, जेल में रखा, जिस शराब घोटाले के मामले में देश में पहली बार एक वजीर आला को उठा करके आप जेल में डाल दिए, और जिनके खिलाफ में आरोप है उनसे 50 करोड़ रुपया मोदी जी ले रहे। Am I right or wrong? ये तो जग जाहिर है कि जिनके खिलाफ अभियोग है, आ रहा हूं मैं आपके जवाब पर, तो आप उनसे 50 करोड़ रुपया ले रहे हो। अब वो जो अरेस्ट था उसको छोड़ भी रहे हो। तो भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी कम बोले तो ये जो नोटबंदी है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार भारतवर्ष में हुआ है क्या? नोटबंदी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जो जीएसटी जो है, मुख्तलिफ किस्म का जीएसटी है, इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो 16 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों को भाई ने छोड़ा है, हमारे साहब ने छोड़ा है, हमारे शहंशाह ने छोड़ा है, हमारे राजा साहब ने जो छोड़ा है, तो ये 16 लाख करोड़ रुपया ये भी तो एक घोटाला है। हमारे देश के किसान सुसाइड कर रहे हैं। हमारे देशों के किसान का 2 लाख 4 लाख रुपया जो ऋण है वो माफ नहीं होता, और आपके मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया जो है माफ कर देते हो। तो ये भी तो एक घोटाला है। आपको बात करने का हक नहीं है मोदी जी। आप पहले बताओ नीरव मोदी के बारे में आप क्या कहोगे? हमारे देश का पैसा, हमारे देश का 8 लाख करोड़ रुपया, 12-15 लोग, वो नीरव मोदी हो, वो ललित मोदी हो, या वो मेको चौकसी, और ये वो जो शराब का मालिक था किंगफिशर का विजय माल्या, 11,000 करोड़ रुपया। एक भी जो हमारे देश का पैसा मार के चला गया, 8 लाख करोड़ रुपया। कई लोगों ने 8 लाख करोड़ रुपया बैंक का घोटाला करके चला गया, एक को भी मोदी जी लाए हैं? अरे बताओ, एक को भी लाए हैं? ये भी एक भ्रष्टाचार है। तो आया हो रही है मोदी जी को पैसा देके, उनके पार्टी को पैसा दे करके वो लोग निकले यहाँ से। संभव है? हमारे देश से आप चले जा रहे हो दूसरे देश, कहाँ हो उसका खबर नहीं। मोदी जी तो खुशते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में मुसलमान गद्दार है। मोदी जी तो ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी कौन कौन है। अभी तो सीए और एनआरसी कर रहे हैं। एनआरसी करके ये खोजेंगे कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है। लेकिन जो लोग हमारा देश का पैसा लूट करके विदेश चला गया, बरसों बरस से विदेश में है, उसको खोज करके लाने की ताकत मोदी जी में नहीं है। सुतरां भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी बोलेंगे। शुभेंदु अधिकारी याद नहीं है आपको? आप मोदी जी की बात ना करो, बीजेपी की बात ना करो। अगर करोगे तो सुनना भी पड़ेगा। हकीकत क्या है? भाग मुकुल भाग बोले थे। मुकुल जब बीजेपी में गया तो वॉशिंग मशीन में गया, तो सादा हो गया ना। शुभेंदु अधिकारी क्या था? भ्रष्टा चोर था, सीबीआई खोज रहा था, ईडी की रेड पड़ रही थी। क्या बोला? शुभेंदु अधिकारी को चार्जशीट में नाम था, शुभेंदु अधिकारी ने वॉशिंग मशीन में डाला गया। आज शुभेंदु अधिकारी क्या हो गया? व्हाइट कॉलर हो गया। 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला करने वाला महाराष्ट्र में अजीत पवार, आज वो वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। किसने बनाया? बीजेपी ने। बीजेपी का इतिहास अगर बोलना शुरू करे, जिन जिन चोरों ने, जिन जिन डाकुओं ने, जिन जिन डकैतों ने लूटा है, चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसने बीजेपी का झंडा पकड़ा, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में गया और वाइट बन करके निकल गया। वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया। तो बीजेपी के बाद टीएमसी ही तो सबसे बड़ी पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। तो बीजेपी अगर चंदा दे रही थी किसी कंपनी को चंदा देने के नाम पर, टीएमसी को इतना चंदा, फर्क आपको समझना पड़ेगा। चंदा तृणमूल कांग्रेस को भी मिलता है। भारतवर्ष की कौन सी पार्टी है जो ये कहे कि चंदा नहीं मिलता है? सीपीएम ने एक पैसा चंदा, मैं बता रहा हूँ आपको कौन पार्टी है। वो आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, सीपीएम के बारे में आ रहा हूँ। सीपीएम का भाई इतना पैसा ही है कि लेगा क्या?
সুদীপদার বিরুদ্ধে প্রার্থী আমি একটা করে সমস্যা ওর একটা উত্তর দিই, একটা গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আছে, ওটা দিয়ে দিই পরে। যে ও একটা ভালো কথা বলেছে যে আচ্ছা इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखा जाए तृणमूल कांग्रेस और चंदा नहीं है। আমি কি বলেছি, किनसे पैसा लिया है? शराब के घोटाले में जो अरेस्ट है, और जिस शराब के घोटाले में तुमने चीफ मिनिस्टर को डाल दिया, सिसोदिया जो नायब वजीर आला उसको डाल दिया, तुमने संजय सिंह को डाल दिया, पूरी आम आदमी पार्टी को मलाइन करने के लिए तुम उसी केस में मलाइन करने का कोशिश किए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को खत्म करने के लिए, किसी व्यक्ति को जो उसके विरोध में बोलते हैं, अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए, दबाने के लिए, वन मैन आर्मी, वन नेशन वन वोट मोदी जी का मैनिफेस्टो में है, वन नेशन वन वोट। लेकिन मैनिफेस्टो बोलते ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, वन मैन वन रूल। भारत उसी तरफ में जा रहा है, मोदी जी अकेला, एक व्यक्ति एक हुकूमत, वो जो बोलेंगे वही होगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी। आप देखिए, बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज अपोजिशन मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं वो। पूरा हिंदुस्तान का हालत देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जो बात का सवाल का आप जवाब देना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये समाज है, CBI ईडी इनकम टैक्स, हम कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में जो साजिशें हो रही हैं, वही साजिश आप पार्टी के केजरीवाल के तमाम लीडरों के खिलाफ हो रही है, वही साजिश सोनिया गांधी के खिलाफ भी हो रही है, वही साजिश राहुल गांधी के खिलाफ भी हो रही है, वही साजिश स्टालिन के खिलाफ भी हो रही है, वही साजिश बिहार में लल्लू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उसकी बहन भारती यादव, उसके खिलाफ भी हो रही है, वही साजिश हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रही है, उसकी पार्टी के खिलाफ हो रही है। सारे हिंदुस्तान में वही साजिश शरद पवार के साथ हो रही है, वही साजिश शरद पवार के पार्टी को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, शिवसेना को खत्म कर दिया गया, उद्धव ठाकरे के खिलाफ में वही साजिश हो रही है। तो आप जो एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, भ्रष्टाचार ये है, CBI इधर रेड कर रहा है, उधर रेड कर रहा है, तो भाई ये रेड, ये CBI जो है सिर्फ बंगाल में नहीं, बल्कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मोदी जी के लिए काम कर रही है। इसलिए हम कहते हैं आज के दौर हाजरा में CBI, ED और इनकम टैक्स मोदी जी के हाथों में खिलौना बन चुका है। मोदी जी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की जमहूरियत में एक कलंक का दौर है 10 साल, जहां अदालिया पर नजरसानी की जा रही है। आप देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त होता था वो 3 लोग करते थे, एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन। पार्लियामेंट में बिल क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। क्यों? मोदी जी को कितनी घबराहट से क्यों हो रही है? अगर CJI रहेगा तो फर्क क्या है भाई? मोदी जी, हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आपका भी मकसद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, हमारा भी मकसद है फ्री में, तो कोई भी कमेटी में रहे, मुझे क्या लेना देना। पर मोदी जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हटाना है, क्योंकि यही एक शख्सियत है जिसे देख करके गर्व होता है कि अभी भी अम्बेडकर साहब जिंदा है, अभी भी महात्मा गांधी जिंदा है, अभी भी विवेकानंद जिंदा है, अभी भी अशफाक उल्लाह जिंदा है, अभी भी भगत सिंह जिंदा है। काफी नेता कुणाल घोष ने स्टेज पे बोला था कि तोपस राय किसी भी पार्टी के कैंडिडेट से कम अच्छे कैंडिडेट नहीं है, उनके समर्थन में भी कहा था, जिसकी वजह से उनका पद भी चला गया। तो कितना टक्कर मानते हैं सुदीप बंदोपाध्याय ने तोपस राय और अपनी जीत के लिए कितना आशावादी? पहली बात जो आपने कहा टक्कर का, तो अगर आपको इतना तजुर्बा है तो बता दीजिए जीतेगा कौन? तो नेता लोगों का ना, आपने ये सवाल किया ना कि सुदीप बंदोपाध्याय जी का साथ में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके कांटे की टक्कर है। कुणाल घोष ने खुद ही कहा था उससे। तो आपने कहा कांटे की टक्कर है, अभी आप कह रहे हैं कुणाल घोष, पहले आपने नहीं कहा था। कुणाल घोष कहा मैंने कांटे की टक्कर है कि ये प्रार्थी किसी भी कैंडिडेट से कम नहीं। सुनिए, मैं एक बात एकदम ईमानदारी से इस विषय में बोलना चाहूंगा। वोट देंगे आवाम,
और वो 1 तारीख को जाकर सुनेंगे सबका, पर वो वोट देने जाएंगे, वो किसको वोट देंगे हम कैसे बता दें? लेकिन हाँ, हम सब लोग जब कोई बातें करते हैं तो मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मेरा ये व्यक्ति मानना है कि जब हम कोई बातें करते हैं तो तथ्य के आधार पे करनी चाहिए, तजुर्बे के आधार पे करनी चाहिए। तथ्य के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर जो बातें करनी चाहिए उसमें गहराई होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या टाके की टक्कर है, बताइए मुझे। मैं अगर इसको विश्लेषण करूं, मैंने जो कहा तथ्य के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने करना चाह रहे हैं। एक हवा बनाया जा रहा टक्कर, लेकिन मैं दो बुनियादी बातों में रोशनी डालना चाहता हूं, एक तथ्य के आधार पर और दूसरा तजुर्बे के आधार पर। तो मेरा तजुर्बा और तथ्य क्या बोलता है मैं आपके सामने पेश करता हूं। सुदीप बंदोपाध्याय के बार जीते हैं? 5 बार। 2014 मोदी का लहर था, सुदीप बंदोपाध्याय जीते। 2019 पुलवामा था, 2019 पुलवामा था, अच्छे उम्मीदवार हार गए, सुदीप दा जीते। अच्छा, ये 2 जीत के बारे में, ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं, और अच्छे मार्जिन से जीते, लाखों वोट से जीते, ये तो मैं तथ्य बता रहा हूं। 14 और 19 का इतिहास। 14 हमारे लिए, देश के लिए, जितनी भी पार्टियां हैं उसके लिए साजगार नहीं था, बीजेपी के लिए साजगार था। 14 मैं कहता हूं, ऑन कैमरा कहता हूं, 14 बीजेपी के लिए माहौल साजगार था, इसलिए एक सरकार परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का सरकार परिवर्तन हुआ, लोगों के जहन में तक परिवर्तन चाह रहे थे लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, मोदी जी को पसंद किया, और मोदी जी का वो स्लोगन था, बाप रे बाप, अब की बार मोदी सरकार। बहरहाल सुदीप बंदोपाध्याय जीते, सुदीप बंदोपाध्याय जीते। 19 में पुलवामा था, और लोगों के अंदर ये चीज था कि मोदी जी को और भी वक्त देना चाहिए, मोदी जी को और टाइम देना चाहिए, मोदी जी को और वक्त देना चाहिए। सुदीप दा जीते। अच्छा, ये 2 तथ्य मैंने बता दिया आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ, सुदीप दा जीते हैं लोकसभा 5 बार, सीपीएम के जमाने में भी जीते हैं। एक जमाना था जब 34 साल बाया मुहाज की सरकार थी, जब सुबह से शाम तक लाल झंडा ही लोग देखते थे, जब गली से गुजरते थे, रास्तों से गुजरते थे, तो लगता था कि पूरे कॉमरेड ही कॉमरेड भरे हुए। উত্তর কলকাতার এই যে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কতটা প্রভাব ফেলবে? পরে আসছি, এটা আপনি একটু শুনে রাখুন ভালো কথা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 বার আমি বলেছিলাম, 14-19 জিতেছেন, এই পরিবেশে জিতেছেন, সিপিএম এর আমলে জিতেছেন, এবারও জিতবেন। লিখে রাখুন, একটা স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে আসুন, আমি প্রকাশ্যে প্রেস কনফারেন্স করে বলছি, আপনাদের সামনে বলছি, একটা স্ট্যাম্প পেপার লিখে আসুন, আমি সই করে বলছি সুদীপ দা এবারও জিতবেন। কেন জিতেছেন? 5 বার কেন জিতেছেন? বাম আমলেও জিতেছেন, কাংগ্রেস আমলেও জিতেছেন, যখন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী তখনও জিতেছেন 2009 সালে, কাংগ্রেস আমলেও জিতেছেন, বাম আমলেও জিতেছেন, বিজেপি আমলেও জিতেছেন, এবারও জিতবেন। কেন জানেন? কেন জানেন? এই কেন জানাটা এত সহজ না। কেন জানেন? 60টা ওয়ার্ডের মানুষের সাথে সুদীপদার সম্পর্ক জল আর মাছলি গায়ে। এটা যদি আমি বলি কেউ বিশ্বাস করবেন না, আমি বিশ্বাস করি। আমাদের ওয়ার্ড, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমাদের ওয়ার্ড 39 নম্বর ওয়ার্ড, 2014 থেকে 19 প্রায় 75-76 লক্ষ টাকা দিয়েছেন এখানকার ডেভেলপমেন্ট। এই যে আপনি দেখুন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মিনিমাস, ওই দেখুন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওই যে মিনিমাস্ট। আমাদের পেজের সামনে দেখবেন হাই মাস্ট 5.5 লাখ টাকা, মহাজ্যোতি সদনে দেখবেন 5.5 লাখ টাকা হাই মাস্ট, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। 75 লক্ষ টাকা এখানকার দিয়েছেন জলের জন্য, फिल्टर वाटर জন্য। আজকে 39 নম্বর वार्ड जल के पानी का तकलीफ है, पानी का तकलीफ है आप लोग को? पानी का तकलीफ नहीं है, पीने का पानी का तकलीफ है, दरिया कल का तकलीफ है, रात 12 बजे भी नहा सकते हैं, बस्ती बस्ती पानी। এর মধ্যে অনেক টাকা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন, লাখ লাখ টাকা দিয়েছেন, যে মানুষের জল যাতে প্রত্যেকটি বস্তিতে যায়, প্রত্যেকটি ঘরে যায়। আমি তো সাক্ষী, আমি কি সাক্ষী, কলকাতা কর্পোরেশনের রেকর্ড আছে। উনি জলের জন্য টাকা দিয়েছেন, আনফিল্টারের জন্য টাকা দিয়েছেন, उन्हें सॉरेज लाने जो टाका दिए। आज देखिए खिला बागान का सरजमी में कोई गली में आप जाइए, रोशनी है, रोशनी है, बोलिए ना आप लोग, हाई मास्ट है, मिनी मास्ट है। सुदीप बंदोपाध्याय তারপরে হচ্ছেন 1 কোটি টাকা দিচ্ছেন
আমাদের এখানে একটা লেডিসদের জিম হবে, মহিলা জিম, তার জন্য 1 কোটি টাকা। এই ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য। আর একটা কথা বলি আপনার সামনে, একটা ওয়ার্ডে একজন এমপিকে আমরা পেতাম না, আমরা জানতাম না। আমাদের ওয়ার্ডে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এত লোকের মানুষের সামনে, সুদীপ দা বছরে কমসে কম 12 বার 15 বার 20 বারও আসে। আসেন कि ना? आते कि नहीं? बोलिए जनता लोग, आते कि नहीं? रमजान में आते, अफ्तारी में आते, ईद के टाइम में आते ना, मानकेश्वर मैदान में ईद में आते हैं, बकरीद में आते हैं, रमजान में आते हैं, ब्लड डोनेशन में आते हैं, मास मैरिज होता है यहाँ आते हैं, महाजाति सदन में स्कूल का प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं। हम लोग जब जब सुदीप बंदोपाध्याय को बुलाते हैं तब सुदीप बंदोपाध्याय 49 नंबर वार्ड के अवाम के लिए आते हैं। 1 जनवरी को हर साल सुदीप बंदोपाध्याय जो हम लोग का फाउंडेशन डे है 1 जनवरी को हर साल आते हैं। एक साल में 12 बार 15 बार 20 बार सुदीप बंदोपाध्याय, किसी का शादी हो, किसी का ब्याह हो, कोई दावत देता है, चाहे वो बैतुल माल में हो या और कहीं भी हो, यहाँ के लोग भी दावत देते हैं। सुदीप दा कोशिश करते हैं 70% 80% शादी में आने का अटेंड करते हैं। इसी तरह 60 वार्ड में सुदीप बंदोपाध्याय का संपर्क है लोगों के बीच में। कोई समझे कोई ना समझे, कोई माने कोई না মানে। আমি আপনাকে বলছি ওর লম্বা হয়ে যাবে, পরে একদিন আসবেন। আমি আপনাকে কলকাতাতে सुदीप बंदोपाध्याय कौन सा स्कूल में कितना पैसा दिए, कौन सा क्लब में कितना पैसा दिए, वो मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में कितना पैसा दिए, मोमिन हाई स्कूल में कितना दिए, सर सैयद अहमद खान में कितना दिए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय इस्लामिया में कितना पैसा दिए, सुदीप बंदोपाध्याय क्या क्या काम किए, यतीम खाना में कितना पैसा दिए, सुदीप बंदोपाध्याय मौलाना आजाद कॉलेज में 75 लक्ष टाका खरीद मौलाना आजाद कॉलेज में दिए। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, 1 नंबर वार्ड से लेके 60 नंबर वार्ड तक, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड में सुदीप बंदोपाध्याय के MP लेड फंड से पिछले 25 साल में बहुत तरक्की का काम हुआ है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। आपने बोलूं আপনি কি বলছেন? লাস্ট একটা আমরা বলে দিই যারা সবাই আছে, আপনাদের কোনো প্রশ্ন? फाइनली हमारे देश की जनता को आप क्या पैगाम लाइव कर रहा है जी, सरप्रस्त। आप क्या पैगाम पेश करना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए हमारे देश की जनता को? हमारे देश के लोगों से यही पैगाम है कि बहुत ही मुश्किलों से मिली है ये आज़ादी, कुर्बानियों का समरा है ये आज़ादी। आज भी इंडिया गेट में 91,000 शहीदों के नामों के फहरिस्त में 63,000 शहीद मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबों का है। ये देश गंगा और जमुना का तहजीब गाह है। ये देश एक गुलदस्ता के मानिंद है। यहाँ कसरत में वहदत की मिसाल है ये मुल्क। हमारा देश कसरत और वहदत की मिसाल है ये मुल्क। हमारे देश में गांधी जी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह की कुर्बानियों का समरा है ये देश। और ये देश को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं बीजेपी। इस देश को निस्तो नाबूद करना चाहती है बीजेपी। कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों का कत्ल होता है, कहीं पर आपके फ्रिज को खोल के देखा जाता है कि बड़ा है ना छोटा है, कहीं पर आप नमाजें जब पढ़ते हैं तो आपके नमाजों पर बूट से बीजेपी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस हम नमाजियों को सजदा में जो है जेर करती है, बूट से मारती है। हमें मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। हमारे मकबरों पर, हमारी दरगाहों पर, हमारे खानकाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हमें पकड़ कर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे मस्जिदों में ढुककर इमाम साहब को शहीद किया जा रहा है। रेल में हाफिज कुरान एक इंसान को रेल से फेंक करके उसकी जिंदगी को लूटा जा रहा है। हम इस मुल्क में, हमने आज़ादी में हिस्सा लिया है, हमारे उलमाओं ने हिस्सा लिया है। ये देश हमारा है। हमें इस देश से निकालना चाहते हैं मोदी जी, हमें इस देश से निकालना चाहते हैं मोदी जी। हम पर एक गद्दारी का थप्पा लगाना चाहते हैं, हम पर पाकिस्तानी का थप्पा लगाना चाहते हैं। हम ये सारे लोग कहते हैं अल्लाह ना करे कभी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जंग हो गई तो खुदा की कसम सरहद में खून बहाने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान होगा, सबसे ज्यादा मुसलमान होगा। हमें इस देश से निकालना चाहते हैं, इसलिए हमें धमकाते हैं NRC से, हमें धमकाते हैं CA से। हम देशवासियों को कहना चाहते हैं ये नफरत के सौदागर हैं, ये आग जला रहे हैं, ये हमारे एक जहती का जनाजा निकाल रहे हैं, हमारी उल्फत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाजा निकाल रहे हैं जमहूरियत का, भगत सिंह के अरमानों का जनाजा निकाल रहे हैं, अंबेडकर साहब के अरमानों का जनाजा निकाल रहे हैं, गांधी जी के सपनों को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क में हिंदू राज बनाना चाहते हैं। हमें अपने भाइयों से कोई इतराज नहीं है,
लेकिन हमारे भाइयों के बीच में नफरत का जहर पैदा जो कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कहना चाहते हैं, बचा लो इस देश को। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप ये चुनाव जो हम लोग यहाँ पर बैठे इतने सारे लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठ के, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चुनाव हम लोगों का नहीं है, ये चुनाव टीएमसी का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी किसी झंडे का नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपके परिवार का है, आपके बच्चों का है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकेंगे कि नहीं, ये सोचने का चुनाव है। आपके इबादत गांव पर इनके बुरे नजर है, आपके खानकाहों पर इनके बुरे नजर है, आपकी दरसगाहों पर मदरसों पर बुरा नजर है। ये मदरसा बंद करना चाहते हैं, ये मदरसा बंद कर रहे हैं। आसाम में मदरसा बंद कर दिया, यूपी में मदरसा बंद कर दिया। ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हमें बुलडोजर से डराना चाहते हैं। देखें नहीं, एक के बाद उत्तर प्रदेश में कैसे इनकाउंटर किया जा रहा है, कैसे मार दिया जाता है। आजम खान के साथ में क्या हो रहा है, हामिद मुख्तार अंसारी के साथ में क्या हुआ, ये जग जाहिर है। मैं आप कह रहा हूँ, ईसाई भी महफूज नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हुआ मणिपुर में? आज जिसको नरेंद्र मोदी जो वोट देने के लिए कह रहे हैं, वोट दो, ये मेरा बच्चा है, 2000 रेप किया है, 3000 वीडियो पकड़ा गया है कर्नाटक में। ये सब देख रही है दुनिया, इसलिए हम लोग अपने मुल्क के आवाम से हम सब मिलकर यही कहना चाहते हैं, बचा लो हमारे गुलदस्ता को। हम एक साथ थे, हम एक साथ हैं और हम एक साथ रहना चाहते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये लोग अलग करना चाहते हैं सिर्फ वोट के, सिर्फ सिंहासन के लिए। कुर्सियां तो आती और जाती हैं, मोहब्बत अगर टूट गया, राजीव भैया से जसीम को अलग कर दिया गया, फिर ये दुनिया विरान हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें जुदा करने वाले को इस देश से जुदा करना है, हमें अलग करने वाले को इस लोकसभा चुनाव में उन्हें अलग करना है। आओ हम सब कसम खाएं, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ इत्तेहाद बचाओ, मोदी हटाओ एकता बचाओ, मोदी हटाओ सालमियत बचाओ, मोदी हटाओ भाईचारा बचाओ, मोदी हटाओ उल्फत मोहब्बत भाईचारगी बचाओ, मोदी हटाओ मस्जिद बचाओ, मोदी हटाओ मदरसा बचाओ, मोदी हटाओ माँ बहनों का हिजाब बचाओ, मोदी हटाओ मदरसा बचाओ, मोदी हटाओ खानका बचाओ, मोदी हटाओ हाफिज कुरान को बचाओ, मोदी हटाओ इमाम को बचाओ, मोदी हटाओ कुरान को बचाओ, मोदी हटाओ ईमान को बचाओ, मोदी हटाओ इस्लाम को बचाओ, मोदी हटाओ संविधान को बचाओ, मोदी हटाओ हिंदुस्तान को बचाओ, मोदी हटाओ अम्बेडकर को बचाओ, मोदी हटाओ जायसवाल को बचाओ, मोदी हटाओ दलित को बचाओ, मोदी हटाओ एससी को हटाओ। क्योंकि ये खतरा सिर्फ हम लोग पर नहीं है, हम पर तो पाकिस्तानी का स्टाम्प लगाया गया, लेकिन आज पंजाबियों को भी खालिस्तानी कहा जा रहा है। एक तरफ वो खालिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी हैं और वो हिंदुस्तानी हैं। असल में हम ही हिंदुस्तानी हैं। वो लोग तड़ी पार थे, तड़ी पार हैं और उनको इस चुनाव में तड़ी पार करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से खुले आसमान के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनता का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहले केला बगान की आवाम के तरफ से ये आवाज़ देना चाहता हूँ, सिर्फ केला बगान नहीं, सिर्फ जोड़ा सागुन नहीं, सिर्फ उत्तर कलकत्ता नहीं, अपने अपने झगड़े को इस राजनीति में मत जोड़ो। अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने सौदे को सौदेबाजी मत करो। सबको बनाए ताक रहो। अरे माँ बचेगी तो हम बचेंगे, बाप बचेगा तो हम बचेंगे, परिवार बचेगा तो हम बचेंगे, खानदान बचेगा तो हम बचेंगे, कौम बचेगा तो हम बचेंगे, हम दोनों बचेंगे तो देश बचेगा। अगर हम नहीं रहे तो कुछ नहीं रहा। सब इम्तियाज को छोड़कर जोड़ा फूल, सिर्फ जोड़ा फूल, सिर्फ जोड़ा फूल। आप लोग मुत्तहद होकर सुदीप बंदोपाध्याय, यहाँ पर तो सुदीप बंदोपाध्याय है, जहाँ जहाँ तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं ईमानदारी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम चाहते हैं गुजरात में कांग्रेस जीते, हम चाहते हैं दिल्ली में केजरीवाल जीते, हम चाहते हैं बिहार में तेजस्वी यादव जीते, हम चाहते हैं कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला महबूबा जीते, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जीते। हम नहीं चाहते कि सिर्फ टीएमसी जीते, हम चाहते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है कांग्रेस जीते, जहां हम मजबूत हैं हम जीते। ना वहां वोट बर्बाद करो, ना यहाँ वोट बर्बाद करो। ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल में एक भी वोट अगर आप कांग्रेस को देते हैं या किसी को देते हैं तो आप बीजेपी को वोट देते हैं, आप बीजेपी को मजबूत करते हैं। और यकीन के साथ, एकता के साथ हम सब अगर बढ़ गए तो कट जाएंगे, मिट जाएंगे। हमने बटना नहीं है,
मुत्तहद होकर के हमको जहां पर बीजेपी को जो रोक सकता है, सांप्रदायिक शक्ति को जो रोक सकता है, मेरा रोकने का मतलब बीजेपी से नफरत नहीं है, मेरा रोकने का मतलब हमें जो अलग करना चाहता है हम उसको अलग करना चाहते हैं, हमें जो तोड़ना चाहता है हम उससे दूर रहना चाहते हैं। इस मुल्क से बड़ा दुनिया में कोई ना था, ना कोई ना है, ना रहेगा। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और यही हमारा नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। ये देश हम सब का है, हम सब इसमें शामिल है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं भेज सकता, हमें कोई श्रीलंका नहीं भेज सकता। ये हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क रहेगा। हम तो यही जिएंगे और यही मरेंगे, क्योंकि जब हमारी मैयत जाएगी तो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही हमारा तदफीन होगा। इससे बड़ा हमारा नसीब क्या है। हम तो जिएंगे भी इस देश के लिए, मरेंगे भी इस देश के लिए। इसलिए सबों की जिम्मेदारी है। रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई, बुनियादी जो मसाइल जो लड़ाई है, वो लड़ाई को तेज करनी है। ये जो बकवास कर रहे हैं राज सिंहासन के लिए, ये सिर्फ बकवास है। इस बकवास पर आस मत कीजिएगा। आस ये है कि इस मुल्क को बचाना, और ये लोग मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। चलिए, रास्ते में चलते चलते बहुत सारी बातें होंगी, हम भी जानते हैं बात करने से ही बात बनती है। तो चलो बात करके देखते हैं। आज आपसे बात किया, आइंदा दिन भी बात करते हैं। हम है